Hello, my dear students. Welcome back in the video lecture series for diploma courses organized by RGPV and Directorate of Technical Education of Madhya Pradesh. We are learning the Python programming language, and today we are going to learn about the lists in Python programming language. The outcome of today's lecture is to provide the complete overview about the lists in Python. So you all know in the previous lecture, if you have gone through those lectures, we have already studied different data types which are available in Python. तो एक तरह का जो डेटा टाइप है वो उसमें आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें एक सीक्वेंस टाइप के हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे और उस सीक्वेंस में हमारे पास तीन तरह के कैटेगराइजेशन था जिसमें हमारा पहला था स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट एंड थर्ड वन इज टपल. So list is one of the sequence type of data type in Python. It stores the collection of data that is ordered. So all these sequence type matlab they store the collection of data items. तो जो डेटा आइटम्स इसमें स्टोर्ड होते हैं दे आर ऑर्डर्ड. लिस्ट के जो डेटा आइटम्स है दे आर ऑर्डर्ड. ऑल आइटम्स इन द लिस्ट मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप. अभी हम देखेंगे अभी आगे जैसे जैसे चलेंगे कि आपकी लिस्ट जो होती है इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स एंड दीज डेटा आइटम्स आर ऑर्डर्ड. और ये जरूरी नहीं है कि सारे डेटा आइटम्स का डेटा टाइप जो है वो सेम हो. इट मे बी डिफरेंट. अलग अलग आइटम का डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिस्ट आइटम्स आर म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट एंड ऑल्सो द डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन लिस्ट. डुप्लीकेट वैल्यूज हम अलाउ करते हैं व्हेन and this is one of the most frequently used and very versatile data type in Python. So today we will study different functions which we are going to use with lists and how to create the list, how to add the elements in the list, and how to delete the elements in the list, how to sort the element in the list, how to reverse the list, and many more things. So let us move ahead. लिस्ट का क्रिएट कैसे करते हैं. सो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट. जस्ट सिंपल सा है. आपने पिछले लेक्चर्स भी देखे होंगे. आपको कुछ कई बार हमने इस लिस्ट डेटा टाइप का जिक्र किया है. फॉर लूप्स को जब हमने डिस्क्राइब किया था तब भी हमने लिस्ट को थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. तो लिस्ट इज क्रिएटेड जस्ट बाय प्लेसिंग द आइटम्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स separated by comma like this. This fruits is a list and it contains these items: apple, banana, mango, cherry and pear. All items are separated by comma. So in order to create a list, simply आपको क्या करना है, square brackets में elements को उसके आपको लिखना है और उन elements को separate करने के लिए आपको बीच में comma लगाना है. Second example, my list equal to, again in square brackets, 10, 30. This is welcome, string type, comma, 2.5. So first item is integer, second also integer, third is a string. Data type इसका क्या है, string है. And fourth one का data type क्या है आपका, floating point number. So it is a list with different types of elements. So यहाँ पर जैसे यहाँ पे तो all elements are of type string first example में. In the second example, different elements are of different data types. Third example, let us see the third example, the list of some integer values, 5, 10, 15, 20. Okay. And the last example is, this is called empty list, which contains no element, just square brackets. So this is the example of empty list. So next is
how will you access a particular element in the list, or what do you mean by indexing in list? So as अभी आपने देखा कि इन लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग. तो किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का उपयोग करते हैं. जैसे हम अरेज में भी इंडेक्स का उपयोग करते हैं, वैसे ही हम लिस्ट में भी इंडेक्स का उपयोग करते हैं. उस पर्टिकुलर एलिमेंट को किस नंबर पे आपने स्टोर किया है, उस नंबर से हम उसको एक्सेस करते हैं. So indexing, just like in arrays also, it starts from 0. The first element can be accessed by list का नाम, और आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, 0. This is the first element. What is the next element? Second element, list का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखना है. In this way you can access the elements of the list. So indexing starts from 0. If you are having a list having the 5 elements, तो इंडेक्स कहां से कहां तक रेंज होगा, 0 से लेकर 4 तक. यदि हमने इसके बाहर किसी नंबर से एक्सेस करना चाहा एलिमेंट को, यदि हमने कहा कि माय लिस्ट से 0 से 4 तो वैलिड है, लेकिन 5 हमने एक्सेस करना चाहा, तो क्या होगा, इट विल गिव यू इंडेक्स एरर. दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इंडेक्स एरर. सिमिलरली अगर आपने इंडेक्स की जगह पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिख दी, 2.5, लिस्ट नेम आपने लिखा और ब्रैकेट में 2.5 लिखा, देन अगेन इट विल गिव यू सम टाइप एरर. सो ये दो तरह की आपको एरर्स मिल सकती है. इफ द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, then you will give index, you will get index error. And if you are using some other data type except integer, so index must be an integer. Other types of data types, if you are using in place of index, then you will get a type error. So Python allows negative indexing also. नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने अरेज भी पढ़े हैं सी में, तो आपको ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो अच्छे से पता होगी कि पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, सेकंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 2, एंड अगर लास्ट एलिमेंट आपका अगर ये 5 एलिमेंट्स है तो इसमें n-1 एंड 4 इंडेक्स होगा. नेगेटिव इंडेक्सिंग इज समथिंग दैट लास्ट इंडेक्स इज एक्सेस्ड बाय -1 इंडेक्स. कई बार हमें लिस्ट को लास्ट से एक्सेस करना रहता है. ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग काफी हेल्पफुल रहती है. लास्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड बाय -1, सेकंड लास्ट इज एक्सेस्ड बाय -2, -3, -4, -5. So Python allows negative indexing. Last element can be accessed by index -1, second last element by index -2, and so on. So how will you access list items? Simply, you can access list items by using index. You can use both positive and negative index. For example, this is your list, my list equal to, this is your list in this example, and you have said print my list 2. So what is the which element is at my list 2? This is the first element, it is my list 0. This is second element, my list 1, and this is the third element, my list 2. So that will give you out in the output, you will get the third element, that is Python. Similarly, if you give my list -3, so -3, this is -1 PHP. Java is at -2 and Python is at -3. Again, you will get the same result Python. Okay, so by using indexes, either positive or negative, you can access an element, particular element in the list. If you want to access a part of the list, एक रेंज है आपके एलिमेंट्स की, रेंज को आपको एक्सेस करना है. So how will you access?
by using the slicing operator, कोलन लगा के। और ये देखिए कैसे करते हैं हम, आपको स्टार्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहां से कहां तक आपको लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। So you have to specify the start, you have to specify the end index, and between start and end you have to put a colon. So this colon is also called slicing operator. तो इस एग्जाम्पल में जैसे ये आपने एक लिस्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी मेलन मैंगो, सो प्रिंट माई लिस्ट 2 to 5। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि माई लिस्ट 2 से लेकर माई लिस्ट 4 तक के एलिमेंट्स आपके प्रिंट होंगे। That means start index is inclusive whereas the end index is excluded. Just like आपको याद होगा हमने रेंज फंक्शन भी पढ़ा था, उसमें भी हमारा जो लास्ट आप जो देते हो, एंड जो आप नंबर देते हो, that is not included. Similarly here also when you give range for the slicing, the end will be excluded, end index will be excluded. तो ये कहां से कहां तक प्रिंट होगा, यहाँ पर आपका प्रिंट 2:5 कहां से कहां तक प्रिंट होगा, इट इज 0, इट इज 1, दिस इज 2, तो चेरी से लेकर 3 and 4 कीवी तक आपका प्रिंट होगा। When you give आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट माई लिस्ट, यू आर नॉट गिवन द स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट नहीं दिया है तो कहां से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहां से एज्यूम होगा, 0 से। तो फर्स्ट एलिमेंट से फोर्थ एलिमेंट तक प्रिंट होगा, यानी कि फोर्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 3 इंडेक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट इन एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज विल बी प्रिंटेड। In the third statement, print statement, what you have written, start you have given, but you have not specified the end index. आपने end index को specify नहीं किया है। So in this case, what will happen? It will start from the 2 index and print up to the last element of the list. So this is called slicing. Slice का मतलब होता है पार्ट उसका आपको निकालना है। So again coming to the Jupyter, this is the example. My list equal to apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon and mango. When you say my list, इसको इसके आउटपुट्स को हम खत्म कर देते हैं। पहले आउटपुट को हटाने के लिए हम करंट आउटपुट्स में जाएंगे, सेल वाले ऑप्शन में, मेन्यू में, एंड देन वी विल प्रेस द टॉगल। So and then I will again run this program to in front of you. So my list 2:5, 2 का मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया आपका, 0, 1, 2, तो चेरी से लेकर ऑरेंज एंड कीवी, दिस इज द fourth index. So 0, 1, 2, 3 and 4th. 5th is not included. Similarly second वाले एग्जांपल में 0 से लेकर 3 तक आपका प्रिंट होगा, 0, 1, 2 and 3. So second is apple, banana, cherry, orange. In the third example 2:2 का मतलब सेकेंड इंडेक्स से एंड तक आपका प्रिंट होगा। तो चेरी से लेकर लास्ट में क्या है, मैंगो, मैंगो तक आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। And similarly in the last example again see -4 to -1. So -4 कौन सा है, ये -1, -2, -3 and -4, this is orange. तो ऑरेंज से लेकर -1 कौन सा है, मैंगो, तो -1 will not be included, just -1 के पहले वाला, यानी कि -2 तक आपका प्रिंट होगा। तो ऑरेंज, कीवी एंड मेलन विल बी प्रिंटेड। So this is the example to illustrate the slicing of the list. Here also this list same and 2 to 5 and this is the same result. Okay.
So coming back, yes. Moving ahead, check. In order to check if item exists in the list or not. जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, आप फिर से पुराने वीडियो लेक्चर्स यदि नहीं देखे आप उसको देखिए, और उसमें भी हमने उस समय एक्सप्लेन किया था कि देयर इज एन ऑपरेटर इन एंड नॉट इन. क्या रिटर्न करता है ये रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स. कब रिटर्न करते हैं ये ट्रू या फॉल्स? जब ये एलिमेंट किसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप में दिया गया एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, प्रेजेंट है या एब्सेंट. तो यदि इन ऑपरेटर क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट. यदि आइटम प्रेजेंट है लिस्ट में तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न. सिमिलरली नॉट इन जो ऑपरेटर है ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, यदि आइटम प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न. सो दिस इज अगेन अ स्मॉल एग्जांपल. ये आपकी लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल टू आपने लिस्ट दी है और प्रिंट जावा इन माई लिस्ट. सो व्हाट इट शुड रिटर्न, it will return either true or false. Java present hai, yes, Java is present in the list, so it will return you true. And Java not in my list, not in कब true return करता है, जब ये present नहीं होता है, परंतु ये present है तो ये क्या return करेगा, false return. So we can write the same on the Jupyter like this. My list equal to C, this I have given the list, and print Java in my list. Again I am printing print Java not in my list. I'm running this program again. Okay. Why it is printing entire string? Because I have placed the double quotes wrongly. आपको सिर्फ जावा को आपको चेक करना है, तो आपको जावा को इसमें रखना है, and then I am running again this program and I am getting the false because it is present. So not in will return true when it is not present. It will return false if it is present. Okay, so this type, this expression actually generally used with the if statement. Condition check, condition बनाने के लिए हम इसका expression का उपयोग करते हैं कि यदि कोई element आपका list में present है या नहीं है. जब भी हमें कोई कंडीशन फॉर्म करनी रहती है जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तब हम इस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं. It depends on again on your application which you are developing. So how will you add an item in the list? कैसे ऐड करेंगे? There are two methods, append and insert. Append method क्या करती है? It adds the element at the end of the list. And what the insert method works? It adds the element at a particular index. तो जब हम append लिखते हैं तो जस्ट उसको लास्ट में ही ऐड करना है, तो सिर्फ हमें आइटम देना पड़ता है. तो यहाँ पे लिस्ट का नाम डॉट लगाएंगे, मेथड का नाम append, और ब्रैकेट्स में आप उस आइटम को लिखेंगे जिस आइटम को आपको ऐड करना है. In case of insert, what you will do? List item, list का नाम dot insert, and you have to give both index and item. That means किस index पर आपको item को add करना है, दोनों चीजें आपको देनी पड़ेगी. You have to specify the index as well as the item. So can you have you understood the difference between append and index?
insert adds the item at a particular index, and append adds the item at the end of the list. So we will see again on the Jupyter, when first we will see the how to remove the elements from the list. So there are basically many methods by which you can remove the element from the list, and they have small differences within themselves. So let us see one by one. रिमूव फर्स्ट मेथड कौन सी है? रिमूव मेथड है, क्या करती है ये? रिमूव स्पेसिफाइड आइटम। यहाँ पे आपको आइटम देना पड़ता है, आइटम का नाम देना पड़ता है, और उस आइटम को उस लिस्ट में से रिमूव कर देती, चाहे कहीं भी होगा आइटम। पॉप मेथड क्या करती है? रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो जो इंडेक्स जो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देती है। You have to specify, पॉप के साथ आपको पैरेंथेसिस में क्या देना है, कौन सा पैरामीटर पास करना है? इंडेक्स। यदि आपने कोई इंडेक्स पास नहीं किया, आपने कुछ भी पास नहीं किया, then it will remove the last item from the list. यदि आपने इसको कुछ भी नहीं दिया है, ब्लैंक रखा है, तो it will remove the last element from the list. Third method is using the del keyword. तो del कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं? del लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में इंडेक्स दे देते। तो लिस्ट का नाम इंडेक्स नहीं, आपने पर्टिकुलर एलिमेंट का ही आपने एलिमेंट दिया है, तो उस एलिमेंट को वो रिमूव कर देता है। यदि आपने इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया, तो पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर दी जाती है। So you must be very careful when you use the del keyword for removing a particular item from the list. If you do not, गलती से यदि आपने इंडेक्स नहीं दिया या भूल गए, तो वो सारी लिस्ट को डिलीट कर देगा। And last is the clear method. Clear method जो है वो लिस्ट को empty कर देती है। It produces the empty list. सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देती है। जब del कीवर्ड से आप किसी लिस्ट को डिलीट कर देते हैं, तो it does not exist at all in the system. If you try to access that list again, you will get an error कि ये लिस्ट है ही नहीं। पर क्लियर मेथड से क्या होता है? क्लियर मेथड it empties the list. It does not remove the list from the environment. So we will see all these things on the Jupyter. Okay, see this. This is your program. Again, I am removing all the outputs. Toggle. This is your program. This is your list. C, C++, Python, Java, PHP. I want to insert one element, that is JavaScript, at the end of the list. So what I will do? I will use the append method. My list dot append and give the item in this parenthesis. पैरामीटर हम क्या पास करेंगे? आइटम। सो जैसे ही हमने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे अपेंड के साथ दिया, सो इट यू विल गेट एन लिस्ट हैविंग वन मोर एलिमेंट एडेड इनटू दैट। तो जब हम प्रिंट करेंगे, तो अभी आप आउटपुट देखेंगे क्या मिलता है। सेकेंड आप देखेंगे, आपने क्या किया? माई लिस्ट डॉट इंसर्ट 1, prolog। इसका मतलब हुआ कि 1 इंडेक्स पर हमें कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है? प्रोलॉग। सो लेट अस रन दिस फर्स्ट। ये देखिए, फर्स्ट आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, ये आपने अपेंड करने के बाद लिखा था, तो क्या है आपका? लास्ट में जावास्क्रिप्ट ऐड हो गया। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट आपका जो था, वो आपने इंसर्ट करने के बाद लिखा था। कहां पर इंसर्ट किया था आपने? 1 इंडेक्स पे इंसर्ट किया था। सो दिस इज 1 इंडेक्स, ये आपका 1 है, इंडेक्स नंबर 1 है, 0 1, 1 पे आपका प्रोलॉग इंसर्ट हो गया और ये आपकी लिस्ट में ऐड हो गया।
One more method which we will see when we join two lists. Basically यहाँ पे हमने रखी है प्रोग्राम के अंदर, that is if you are having two lists, my list and your list, you are having two lists, एक आपकी ये लिस्ट है, दूसरी ये लिस्ट है, and if you want to concatenate these two lists, आप उसको जोड़ना चाहते हैं, आप उसको मर्ज करना चाहते हैं, तो what you can do, आप लिख सकते हैं my list डॉट एक्सटेंड योर लिस्ट। माई लिस्ट यानी कि आपको इस लिस्ट में आपका योर लिस्ट के एलिमेंट्स भी अपेंड हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो जब आपने माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड योर लिस्ट लिखा एंड प्रिंट माई लिस्ट, सो यू विल गेट द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट। कहां तक के थे आपके, ये माई लिस्ट तक के एलिमेंट्स है, एंड देन HTML, XML and CSS which are there in your list. So you will get a concatenated list. तो ये आपका हो गया append, insertion, addition of the elements on the list. Then you will see the how to remove the element from the list. Yes. So first method is remove. तो माई लिस्ट आपकी, अगर हम आपको मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि यदि हम इसमें जो जुपिटर में हम स्टेप बाय स्टेप सेल्स को एग्जीक्यूट करते जाते हैं, तो आपके जो प्रीवियस सेल्स है उसका डेटा कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके जो वेरिएबल्स है वो आप नेक्स्ट सेल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने डायरेक्टली लिखा है माई लिस्ट डॉट रिमूव, सो ये माई लिस्ट ये ऑटोमेटिकली इसके प्रीवियस सेल में आपने जो माई लिस्ट लास्ट में क्रिएट करी है वो माई लिस्ट आपकी कंसिडर होगी। तो आपकी जो माई लिस्ट थी लास्ट में क्रिएट की गई वो ये वाली थी आपकी, दिस इज योर माई लिस्ट, बिकॉज यू हैव एक्सटेंडेड योर लिस्ट बाय यूजिंग द एक्सटेंड मेथड। तो अब आपने क्या किया, माई लिस्ट डॉट रिमूव पाइथन, आपने इसमें से पाइथन एलिमेंट को रिमूव कर दिया और फिर उस लिस्ट को आप प्रिंट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए आपका पूरी लिस्ट आ रही है, एंड दिस पाइथन हैज बीन नाउ रिमूव्ड and you are getting the final list. If you are writing my list dot pop 3 means index 3. What is the index 3? 0, 1, 2 and 3. So Java should be removed. Let us see the result. Yes, C, Prolog, C++ and Java has been now removed. और फिर उसके आगे आपकी फिर वही लिस्ट है पूरी लास्ट तक। ओके, सो अगर आपने पॉप के साथ इंडेक्स दिया है तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी इंडेक्स, देन लास्ट एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। लेट अस सी, आपने अपने यहाँ पे सिर्फ पॉप दिया है तो यहाँ देखिए आपका लास्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो गया, दैट इज CSS हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट इज del keyword, del mylist1. So mylist1 is what? Prolog. So this prolog will be removed and you are getting the result which removes the prolog from this list. है ना, आपका जो prolog है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब यदि आपने ऐसा कहा del mylist, so what you will get? Del mylist, this is very important. So this list has been removed totally from the मेमोरी, वहां पर माई लिस्ट नाम की कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है। और जब आप ये प्रिंट माई लिस्ट देंगे तो यू विल गेट एन एरर लाइक दिस, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। सो दिस इज important. Once you delete a list, you cannot do any operation, you cannot access that list again. Okay, running again and you are getting again the same error. If I do not, or I will comment this, अब हम रन कर रहे हैं तो there is no error.
Similarly, clear is my list you have specified, and because you have already deleted that list, so I have to again specify the list. इसको क्रिएट किया है मैंने, और फिर हमने क्या किया, डॉट क्लियर मेथड का यूज किया. सो क्लियर मेथड क्या करती है, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देती है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देती है, एंड यू विल गेट एन एम्प्टी लिस्ट. जब हम इसको प्रिंट माई लिस्ट करते हैं, सो आपको क्या मिलेगी, एम्प्टी लिस्ट. दिस यू आर गोइंग टू गेट. अगेन आपका जो है, आई एम रनिंग दिस and you are getting the empty list. So this is very interesting, and you need to remember all these methods which are used. और बहुत यूजफुल है, जैसी चाहे आप जहां पर जिस तरह की मेथड की आवश्यकता हो वहां पर वो मेथड आप यूज कर सकते हैं. So coming back to the slides. So how will you modify item in the list? तो आपको शुरू में अभी बताया कि लिस्ट कैसा डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप है. म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप जस्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर का यूज करके आप किसी एलिमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल. तो चूंकि लिस्ट एक म्यूटेबल सीक्वेंस है, द लिस्ट आइटम्स कैन बी चेंज्ड बाय जस्ट असाइनिंग न्यू वैल्यूज. तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू आप करके आप इसको नई वैल्यूज को, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर लिस्ट एंड आपने लिखा माई लिस्ट 3 इक्वल टू जावास्क्रिप्ट. सो व्हाट इज माई लिस्ट 3? इट इज जावा, और जावा की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट, जब आप प्रिंट करोगे इसको. सो अगर आपने इस तरह से कहा, देन योर लिस्ट बिकम्स लाइक दिस. टू चेंज अ पर्टिकुलर आइटम इन अ पर्टिकुलर रेंज. अब आपको रेंज आपको पूरी की पूरी चेंज करनी है. आपको एक एलिमेंट नहीं चेंज करना है, एक रेंज आपको चेंज करनी है कि सेकंड एलिमेंट से फिफ्थ एलिमेंट आप तक के वैल्यूज को आपको अपडेट करना है, आपको नया उसमें कोई वैल्यू डालनी है. So you can easily specify this. My list, आप इसमें 1:3 रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, स्लाइस स्पेसिफाई कर दीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए. So you will get an updated list modifying index 1 एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट था इंडेक्स 1 पे, C++. की जगह आ जाएगा HTML, और इंडेक्स 2 पे कौन सा था, पाइथन. तो पाइथन की जगह पे आ जाएगा आपका CSS. इन दिस फर्स्ट लिस्ट आपको यहाँ पर CSS आ जाएगा, देन जावा एंड PHP. सो यू आर गोइंग हियर टू चेंज द रेंज ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट. यदि आपकी जो रेंज आपने स्पेसिफाई की है, यानी कि लास्ट इंडेक्स तो आपका इंक्लूड होगा ही नहीं एज यूजुअल, तो आपका 1 और 2 एलिमेंट आपके चेंज होंगे. यदि आपने इसमें मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव स्पेसिफाइड, से इफ यू हैव स्पेसिफाइड 1 मोर एलिमेंट HTML, CSS, XML से, एंड आपने आइटम तो 2 ही, यहाँ पे रेंज आपने 2 आइटम्स की दी है, लेकिन आपने यहाँ पे 3 आइटम स्पेसिफाई कर दिए. सो योर लिस्ट, इट विल इंसर्टेड in the next index and your list will be shifted towards right. So let us see how it will be used. I am going to insert a new cell below, and again my list is this. And then what I will do, my list, say 1:3 equal to what I want to add, HTML and CSS. Okay,
and I'm going to now print this my list. I'm running this program. तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे आपका क्या हो गया HTML, सेकंड इंडेक्स रिप्लेस होके क्या हो गया CSS, और बाकी की लिस्ट आपकी एज इट इज थी. नाउ इफ आई ऐड वन मोर एलिमेंट से, यहाँ पर हमने दो रेंज तो 2 वैल्यूज की दी है, लेकिन हमने इसमें 3 वैल्यूज ऐड कर दी से XML, है ना. और अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, आपकी तीसरी वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आपकी लिस्ट जो है और आगे शिफ्ट हो जाएगी. So now you are having the 6 elements in the list. In place of 2 elements, you are inserting 3 elements. So this is about the modifying again, coming to the one of the most important method which is used very frequently with sequence type of data types or any collection of data types, that is the length of the collection. Here the length of the list is, you can find the length of the list by using the len function. len function क्या करता है, gives number of item in the list. कितने आइटम से ये बताता है. तो आपकी अगर ये लिस्ट है और इसको कैसे यूज करते हैं, len, और उसके पैरेंथेसिस में हम लिस्ट, जो भी लिस्ट है उसको हम पास करते हैं, वह उसको हम यहाँ पर लिखते हैं. तो यदि हमने कहा प्रिंट len my list, क्या प्रिंट होगा 5 प्रिंट. कितने एलिमेंट्स है इसमें 5 elements. So you will get the output 5. It will give you the number of elements in the list. लेंथ निकालना हमें कई बार जरूरत पड़ती है, जब हमें लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमें उतनी बार लूप एग्जीक्यूट करना पड़ता है जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें कई बार many of the times you will need to use this function to find the length of the list. So iterating over a list का जो मतलब है, it means you need to traverse all the elements of the list one by one. तो हम जब हमने for loop पढ़ा था तभी हमने आपको इस चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था. Let us again just revise shortly that आप किस तरह से for loop का यूज करते हैं लिस्ट के साथ में. तो आपका सिंटेक्स है for x in, यहाँ पर आप लिस्ट का नाम देते हैं, लिस्ट जो भी आपको लिस्ट जिसके ऊपर आपको इटरेशन ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी है, एंड देन आपने स्टेटमेंट की जगह क्या लिखा है प्रिंट एक्स. तो इससे क्या होगा कि एक्स को पहले फर्स्ट एलिमेंट की जो भी लिस्ट का होगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट आपको असाइन हो जाएगा एक्स को और वो प्रिंट हो जाएगा. In the third iteration, third element will be assigned to x and that will be printed and so on. Second, दूसरा तरीका क्या है, using len and range method in for statement. तो आप किस तरह से लिखेंगे, for x in range length of list 1. So this length of list 1 क्या देगा आपको, number of elements in the list. नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट्स है तो ये 5 आपको देगा. तो जब रेंज 5 आपकी एग्जीक्यूट होगा ये मेथड, तो रेंज 5 क्या देती है आपको, इट विल जनरेट अ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4. ओके, तो 0 से 4 तक का एक सीक्वेंस आपका जनरेट होगा. तो x को पहले कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी 0 और प्रिंट क्या होगा लिस्ट 1 0. तो फर्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट होगा. यहाँ पर आपको प्रिंट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि यू हैव टू प्रिंट द element of the list by accessing via the index. तो पहला एलिमेंट आपने 0th इंडेक्स पे है तो पहला वैल्यू x को 0 असाइन हुई, तो पहला एलिमेंट आपका प्रिंट हुआ. नेक्स्ट इटरेशन में x को 1 वैल्यू असाइन होगी और आपका कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, सेकंड वैल्यू प्रिंट होगी. लिस्ट 1 is the index of the second element and so on. Similarly you can use while loop also. while loop में आपको क्या करना है, आपको एक लूप कंट्रोल वेरिएबल लेना है i equal to 0 and while I is less than length of list 1 print list 1 I.
तो आपको ये i की वैल्यू को हर स्टेप में इंक्रीमेंट करते जाना है. I equal to I, it should be I plus 1. It should be I plus 1. So there is some mistake here. So you can write here I plus 1. तो इस केस में क्या होगा, आपका हर इटरेशन में I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी. पहली बार में I की वैल्यू 0 है, तो 0 इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट 1 से लेंथ ऑफ लिस्ट 1 इज अगेन 5. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. तो ये कंडीशन जो है ये 0 के लिए ट्रू है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट होगा. I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 1, और लेंथ आपके अगेन 1 इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट 1. सो अगेन आपका कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, लिस्ट 1 ऑफ 1, दैट इज सेकंड एलिमेंट. I की वैल्यू अगेन हो जाएगी इंक्रीमेंट 1 से, तो I की वैल्यू हो गई 2, एंड यू विल गोइंग टू गेट द थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन, जब तक I की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 4 तक. तो ये एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही I की वैल्यू 5 होती है, this condition becomes false and you will get out of the loop. In this way you are going to iterate over the list. I think it should be clear, and if it is not clear, you must to visit the previous video lectures for while loop and for loops, and then you will get a better understanding about this. So next is some methods which you you can apply over the list. So first method is copy method. It is used to create the separate copy of list which will be stored in a new list variable. तो copy method से हमारे एक और नई लिस्ट बनती है जो कि सेम होती है जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं. यहाँ पर जैसे आपने लिखा है माई लिस्ट, आपने डिक्लेयर करी है, और आपने क्या लिखा है, लैंग्वेज इक्वल टू माई लिस्ट डॉट कॉपी. तो ये जो है लैंग्वेज एक नई लिस्ट फॉर्म होगी जो जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, माई लिस्ट के होंगे. सारे एलिमेंट सेम लिस्ट आपकी फॉर्म होगी. यदि आप इसको इस तरह से लिखते हैं लैंग्वेज इक्वल टू माई लिस्ट, तो भी कोई एरर नहीं है आपकी. ये भी सही है, परंतु ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट करेगा माई लिस्ट. तो जिस तरह से ये एक ही जगह तो दो अलग अलग लिस्ट क्रिएट नहीं होंगी, ये दो रेफरेंसेस क्रिएट होंगे जो सेम लिस्ट को पॉइंट करेंगे. और यदि आपने कोई भी माई लिस्ट के एलिमेंट्स में कुछ अपडेशंस किया या चेंजेस किए, तो वो लैंग्वेजेस वाली लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगे. लैंग्वेज चूंकि उसी लिस्ट को पॉइंट कर रही है, तो अगर आप लैंग्वेज को एक्सेस करेंगे तो वही सेम चेंजेस आपके लैंग्वेज में भी दिखेंगे. सो दिस विल गिव यू सेम पॉइंटर्स बेसिकली कि दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रही है. लेकिन यदि आपको दो डिफरेंट कॉपीज बनानी है, एक सेपरेट अलग से कॉपी बनानी है, कई बार हमें ऐसा रहता है कि हम प्रीवियस पहले कॉपी को सेव कर लेते हैं और फिर जो उसकी एक और कॉपी बनाते हैं और उस पर कुछ और दूसरे मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और पहली वाली कॉपी को हम सेफ रखना चाहते हैं, तो उस केस में हमें उस कॉपी मेथड का यूज करना. नेक्स्ट इज जॉइनिंग टू लिस्ट. ऑलरेडी वी गॉन टू दिस एक्सटेंड मेथड. अभी हमने आपको बताया था जब हमने इंसर्शन या एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स बताए थे. इट कॉन्केटिनेट्स टू लिस्ट, लिस्ट नेम 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट नेम 2. अब एक और दो तरीके प्लस ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 सिंपली. तो जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं इस तरह से, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हम नेक्स्ट नए लिस्ट में हम सेव करते हैं, माई लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, और इस तरह से आपको ये आउटपुट मिलेगा दोनों के कॉन्केटिनेशन से. लिस्ट 1 के भी वैल्यूज है यहाँ पे और लिस्ट 2 की भी. और स्टार ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज्ड टू जॉइन विद द लिस्ट. बेसिकली ये क्या करता है, ये इस तरह से यूज करता है लिस्ट का नाम multiplied by some integer value. It should be integer. The star operator is used only with some integer value. क्या करेगा ये, जितना जो भी आपने इंटीजर वैल्यू दी है उतनी बार लिस्ट आइटम्स को रिपीट करेगा. जैसे कि आपने XYZ दिया यहाँ पे एंड लिस्ट 1 स्टार 3 दिया, तो ये जो X, Y, Z ये जो वैल्यूज हैं, दे विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स.
and you will get this out. So let us see, अब हम देखते हैं जरा जुपिटर पे चल के क्या इस तरह से हम कर सकते हैं. Yes, list 1 is XYZ, list 2 is 1 2 3 4 5. My list is equal to list 1 dot extend list 2. Okay, come to this example. List 1 dot extend list 2 print list 1. ये जो extend हमें ऑपरेशन का यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, तो क्या होता है, कौन सी लिस्ट एक्सटेंड होती है, दिस लिस्ट इज एक्सटेंडेड. लिस्ट 1 में ही आपके लिस्ट 2 के आइटम्स ऐड हो जाते हैं. इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट. यू शुड कीप इन माइंड कि नया लिस्ट क्रिएट नहीं होगा. आपका जो फर्स्ट जिस लिस्ट पे आप डॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी लिस्ट में सेकंड लिस्ट के एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे. यदि हमने कहा लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1, तो यू विल गेट सम डिफरेंट आंसर. वी विल सी दिस. और आपने क्या कहा, प्रिंट लिस्ट 1, तो आपकी लिस्ट 1 क्या प्रिंट हो रही है, XYZ 1 2 3 4 5, है ना. आपने एक्सटेंड कर दिया लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 की ही वैल्यू आपकी ये होगी. अब आपने एक नई लिस्ट क्रिएट करी, माई लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. तो यहाँ जो प्लस ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं, उससे आपकी एक नई लिस्ट क्रिएट होती है. लिस्ट 1 वैसी ही रहेगी, लिस्ट 2 भी वैसी ही रहेगी, पर एक नई लिस्ट क्रिएट होगी जो करेगी, क्या करेगी, लिस्ट 1 के एलिमेंट्स होंगे जिसमें, और कॉन्केटिनेट होके लिस्ट 2 के भी एलिमेंट्स होंगे. तो लिस्ट 1 क्या थी आपकी, दिस इज योर लिस्ट 1. अप टू दिस इट इज लिस्ट 1. और यहाँ उसके आगे क्या कॉन्केटिनेट हो गए, लिस्ट 2 के आइटम्स आपके कॉन्केटिनेट. ये लिस्ट 1 ये कैसे थी, यहाँ आप तो कहोगे कि लिस्ट 1 तो XYZ है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दो कि आपने यहाँ पे एक्सटेंड आपने पहले यूज कर लिया है फंक्शन, तो आपकी लिस्ट 1 क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई. ओके, सो अब आपने इसको प्रिंट किया माई लिस्ट को, तो यू विल गेट दिस आंसर. एंड द थर्ड वन इज माई लिस्ट 2 में आपने क्या डाला है, लिस्ट 1 स्टार 3. तो लिस्ट 1 जो है वो 3 बार आपकी प्रिंट होगी. तो लिस्ट 1 क्या है, अगेन दिस इज योर लिस्ट 1 जो मैंने अभी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी. सो दिस इज लिस्ट 1, पहली बार प्रिंट हो रही है ये यहाँ पे, और इसके आगे दूसरी बार यहाँ तक प्रिंट हो रही है, और इसके बाद लास्ट 3 टाइम्स प्रिंट. So if again one more example, if I write here list 2 dot list extend dot list 1, यहाँ पर अगर हम इसको 1 लिस्ट 2 को हम एक्सटेंड, तो अब लिस्ट 2 जो रहेगी वो आपकी मॉडिफाई होगी. तो यहाँ पर आप लिस्ट 1 भी प्रिंट करवा लेते हैं और प्रिंट लिस्ट 2 प्रिंट करवाते हैं. एंड लेट अस सी सम डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस, है ना. तो अब आपकी जैसे देखिए, आपने लिस्ट 2 को एक्सटेंड किया है, तो लिस्ट 1 आपकी XYZ ही रही. लिस्ट 2 क्या हो गई, 1 2 3 4 5 के आगे XYZ आपका अपेंड हुआ है. ओके, अब आपने माई लिस्ट में क्या कहा है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 क्या हो गया, लिस्ट 1 क्या है आपकी XYZ, और लिस्ट 2 क्या है आपकी, दिस इज योर लिस्ट 2. सो दिस हैज बीन अपेंडेड प्लस ऑपरेशन. और लिस्ट 1 स्टार 3, तो लिस्ट 1 आपकी वही है, आपकी एक्सटेंड होके लिस्ट 2 मॉडिफाई हुई थी, लिस्ट 1 तो वैसे ही रही आपकी. तो XYZ, XYZ, XYZ 3 times it has been printed. So I think it must be clear to all of you how this list has been joined. Next is how to sort a list. सॉर्टिंग सबको पता है. सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, है ना, असेंडिंग या बढ़ते क्रम से या घटते क्रम से. यदि आपको किसी लिस्ट में आपको आइटम्स को अरेंज करना है, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग. तो यदि न्यूमेरिकल आइटम नंबर्स हैं, तो सॉर्टिंग नंबर्स के ऊपर होती है. और अगर अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि उसमें अल्फाबेट भी है, तो जैसे डिक्शनरी में आप सॉर्टेड देखते हैं कि ए वाला पहले आता है, फिर बी, फिर सी, इस तरह से. तो उसी तरह से आपकी इसमें भी सॉर्टिंग हो सकती है. तो सॉर्ट जो मेथड है, इट सॉर्ट्स लिस्ट अल्फा न्यूमेरिकली इन असेंडिंग ऑर्डर.
कौन सा ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है इसका? असेंडिंग ऑर्डर। और कैसे यूज करते हैं आपको लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट। तो अभी तक आपने जितनी भी मेथड्स देखी आप किस तरह से यूज करते हैं? लिस्ट का नाम डॉट लगाकर उस मेथड का नाम लिखते हैं। ओके, सो sort list in to sort list in descending order। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में आपका जो है वो आपकी सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगी। लेकिन यदि आपको घटते क्रम में आपको अगर सॉर्टिंग करवानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस में आपको ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कौन सा पैरामीटर? रिवर्स इक्वल टू ट्रू। और इस तरह से आपको ये कौन से ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना चाहिए वो ये है कि केस सेंसिटिव होती है सॉर्टिंग, यानी कि कैपिटल लेटर्स को पहले माना जाता है और उसके बाद स्मॉल लेटर्स। तो ऑर्डरिंग जब हम करेंगे तो पहले कैपिटल लेटर्स को मानेंगे, लेंगे, और उसके बाद हम सॉर्ट करते हैं स्मॉल लेटर्स को, लोअर केस लेटर्स। तो अगर हमको केस इनसेंसिटिव सॉर्टिंग करनी है, ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें उसके पैरेंथेसिस में एक पैरामीटर जो एट्रीब्यूट पास करना है वो है की इक्वल टू str डॉट लोअर। इस तरह से यदि हम यहाँ पर पास करते हैं तो ये जो है केस इनसेंसिटिव सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। एंड सिमिलरली there is a method to reverse the list। रिवर्स का मतलब होता है कि लास्ट एलिमेंट पहला हो गया, सेकंड लास्ट दूसरा हो गया, थर्ड लास्ट तीसरा हो गया, यानी कि ऑर्डरिंग उसकी अपोजिट होगी। जब ऑर्डरिंग अपोजिट हो जाएगी इसका मतलब आपको इसमें सॉर्टिंग की यहाँ पे कोई बात नहीं है, कैसा भी आपका सॉर्टेड अनसॉर्टेड हो, लेकिन आप उस दी गई लिस्ट को आप रिवर्स डायरेक्टली आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिवर्स मेथड। एग्जाम्पल देखिए, लिस्ट 1 आपने XYZ दिया है, लिस्ट 2 1 2 3 4 5 दी है, लिस्ट 3 भी आपने क्रिएट करी है C++ जावा पाइथन। लिस्ट 1 को रिवर्स किया तो आपका क्या आउटपुट आना चाहिए? Z, Y और X। लिस्ट 2 को रिवर्स किया तो 5 4 3 2 1, और लिस्ट 3 को रिवर्स किया तो पाइथन जावा C++C। तो इसको भी अभी चलो जुपिटर पे देख लिया जाए। दोनों चीजें जो हमने सॉर्टिंग देखी और जो हमने रिवर्स करना देखा। तो सॉर्टिंग के लिए ये प्रोग्राम था। सॉर्टिंग हमने कुछ एक नंबर्स की लिस्ट दी थी और हमने इसको कहा नंबर्स डॉट सॉर्ट, और फिर हमने उस लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो पहले जो है आपका इसको टॉगल कर देते हैं आउटपुट्स को, क्योंकि वो और किसी लाइन के आउटपुट्स हैं, और इसको हम रन करते हैं। तो क्या हो गया देखिए, यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, बढ़ते क्रम से पहले सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो आपका यहाँ पर अब अगर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट नंबर्स, अच्छा इसी में आप कर दीजिए प्रिंट नंबर्स, सॉरी सॉर्ट, नंबर्स डॉट सॉर्ट, क्या लिखना था आपको यहाँ पर? रिवर्स इक्वल टू ट्रू, reverse equal to true, and I am again running this, then you will get in the descending order। अब आपका ये ऑर्डर क्या हो गया? चेंज। ओके, सो दिस इज द सॉर्टिंग ओवर द नंबर्स। अब आपने यहाँ पे 3 लिस्ट आपने डिफाइन करी, XYZ 1 2 3 4 5 एंड C++ जावा पाइथन। आपने लिस्ट 1 को रिवर्स किया तो क्या आ गया? आपका आउटपुट क्या आया? Z, Y और X। अब अगर हम यहाँ पर लिस्ट 2 को रिवर्स करते हैं, लिस्ट 2 डॉट रिवर्स, है ना, एंड प्रिंट लिस्ट 2 एंड अगेन रनिंग दिस प्रोग्राम। सो आपकी लिस्ट क्या होगी? रिवर्स होगी। सो लाइक दिस। सिमिलरली लिस्ट 3 आप कर सकते हैं, लिस्ट 3 डॉट रिवर्स एंड प्रिंट लिस्ट 3 हो, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। आपकी जो लिस्ट है, तो लास्ट एलिमेंट क्या था? पाइथन था,
ये Python first हो गया, then Java, then C++ and C. You will get just the reverse of this list. So this is all about the lists in Python. We have covered almost everything which is there in your syllabus, and it is your turn to do more and more practice on the list. आप ज़्यादा से ज़्यादा practice करिए और उसको आपको करके देखता है. See you in the next lecture. Okay. Till then, take care. Goodbye.